Good morning, students. Now, in dimensional analysis, we have discussed about how to find out dimension of mechanical quantities and how to find out dimension of some of the thermal quantities. Some of the quantities are still remain. In today's session, we are going to discuss those physical quantities. Now, the first thing, let us discuss electrical quantities. So let us find out the dimension of electrical quantities. You will see a lot of questions which are related to electrical quantities. काफी ज़्यादा physical quantities है यहाँ पे. हम सिर्फ 4-5 electrical quantities ही देखेंगे जिसका हमें ज़्यादा यूज होता है. उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन मतलब कि जब 12th पढ़ेंगे जैसे ज़्यादा electrical quantities हमारे सामने आती जाएगी. In that manner, we will discuss other electrical quantities. Okay. Right now, let's just discuss some of the important electrical quantities which are there. Now, electrical quantities, we were about to discuss the first electrical quantity that comes in our mind when we start to discuss this is इलेक्ट्रिक करंट. पहली इलेक्ट्रिक क्वांटिटी जो हम पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी आर हैविंग इज एम्पियर. एंड आई नीड टू फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. इसका मुझे जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला भी ढूंढना है. हम सबको पता है कि ये जो एम्पियर है इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम. तो उसका डायमेंशन जो है वो है A1. जैसे हम टेम्परेचर के लिए K ले रहे थे वैसे एम्पियर के लिए भी हम A लेंगे. फंडामेंटल है मतलब उसको और किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन में जरूरत नहीं है. You don't require mass length and time for definition of electric current in order to define the unit of electric current. Ampere itself is the fundamental unit. So its dimension formula comes out to be M0 L0 T0 A1. दूसरी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज. The second electric quantity that we are going to discuss is electric charge. चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम. लेकिन हमें पता है कि करंट I जो होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो आपने 10th में पढ़ा होगा. तो यहां से जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. The charge should be current multiplied by time. So basically 1 coulomb is nothing else but what? It is 1 ampere into second. 1 coulomb will be equal to 1 ampere into second. तो यहाँ पे टाइम भी है और करंट भी है. तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? M0 L0 because there is 1 unit of time. So T1 and of course ampere is there. So A1. So for electric charge, I have this dimension formula M0 L0 T1 A1. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है चार्ज के बाद वो है पोटेंशियल डिफरेंस. The next quantity that we are going to discuss is potential difference. Generally, we denote that potential difference is with V. Even its unit is what? Its unit is volt. Potential difference का जो unit है वो क्या है? Volt है. Volt को अगर define किया जाए, you study this in your 12th standard, is joule per coulomb. The volt is nothing else but what? It is joule per coulomb. तो उसका डायमेंशन क्या होगा? जूल में क्या है? M1 L2 एनर्जी वर्क M1 L2 T minus 2 divided by coulomb.
T1 A1 that we have already discussed. So dimension formula for volt is M1 L2 T minus 2 already there, so T minus 3 and A minus 1. This is the dimension formula for potential difference. आ रहा है समझ? पोटेंशियल डिफरेंस उसका ऐसा यूनिट है वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम, और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशन फार्मूला हमने लास्ट सेशन में देखा था m1 l2 t-2, और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया t1 a1, तो उसका डायमेंशन क्या बन रहा है m1 l2 t-3 a-1। चलो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जो क्वांटिटी हमारे दिमाग में आ रही है वो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हम सबको पता है उसका यूनिट क्या है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट भी ऑल नो, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू ओम। लेकिन अगर फार्मूला की बात करो V इज इक्वल टू IR, ये भी हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, वोल्टेज अपॉन करंट। 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर, इट इज वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का अभी भी फॉर्मूला ढूंढा हमने, m1 l2 t-3 a-1, करंट का a1, तो यहां से क्या बन रहा है m1 l2 t-3 a-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आ रहा है, समझ आ रहा है, V इज इक्वल टू IR, और सा फॉर्मूला बन रहा है रेजिस्टेंस का वोल्टेज अपॉन करंट, एंड 1 ओम इज बेसिकली 1 वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पहले ही ढूंढा है, m1 l2 t-3 a-1 divided by additional current in the denominator, so it becomes m1 l2 t-3 a-2। उसके बाद मैंने जैसे बोला सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात नहीं करते, सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। द फोर्थ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं अब, या रादर फिफ्थ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, द फिफ्थ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैपेसिटेंस। ये आपके लिए नई क्वांटिटी है, ये आपने पहले कभी नहीं सुनी है। यू विल स्टडी इवन दिस इन योर 12th स्टैंडर्ड। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फैरेड। ऐसा यूनिट फॉर कैपेसिटेंस इज फैरेड। ओके, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस इज गिवन एज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज विथ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अब इसको यूज करके हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढना है। क्या होगा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, कूलम पर वोल्ट। कूलम हमें पता है क्या होना चाहिए, कूलम, इट इज T1 A1। हम सबको पता है कूलम इज नथिंग एल्स बट व्हाट, इट इज T1 A1 डिवाइडेड बाय वोल्ट। वोल्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, वोल्ट का फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास m1 l2 t-3 a-1 डिवाइडेड बाय m1 l2 t-3 a-1। सो जो फैरेड है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, m-1 l-2 2 3 and 1 t4 a2। ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो है हमारा कैपेसिटेंस का, m-1 l-2 t4 a2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इंडक्टेंस। द नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लेकर रहे हैं वो है हमारा इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L से। इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है हेनरी। ठीक है, all these units are given under the name of scientist, whether it is ampere, coulomb, volt, ohm, farad or henry. SI of inductance is
Henry. How you write down inductance? Inductance can be written as EMF or voltage V upon rate of change of current. ये है inductance का हमारा formula. It is voltage V upon rate of change of current. V upon di by dt. So 1 Henry is basically 1 volt per ampere per second. तो ampere per second तो second ऊपर जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. यू गेटिंग दिस? वोल्टेज अपॉन एम्पियर पर सेकंड. दिस सेकंड कैन गो अप, सो इट इज वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर. वंस अगेन, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वोल्ट? वोल्ट का डायमेंशन फार्मूला क्या है? m1 l2 t minus 3 a minus 1. What is second? t1 ampere. a1 second is t1 ampere is a1. So dimension formula for inductance क्या होगा? m1 l2 t minus 3 और 1. So t minus 2 होगा. t minus 3 और 1. So t minus 2 होगा और a minus 2. तो ये हमें मिल रहा है इंडक्टेंस का फॉर्मूला. आरएस में सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली जो अभी फिलहाल हमारे काम की है. बहुत सारे एक्सेस भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और सारी मैग्नेटिक क्वांटिटी आएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह. हम उनके ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं. हम सिर्फ इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज यहाँ पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल डायमेंशन फॉर्मूला A1. इलेक्ट्रिक चार्ज I Q by T. So Q charge is current into time. Unit is ampere into second. So dimension formula becomes T1 A1. ये दोनों तो सीधे इजी है, इन दोनों को आपको याद रखना है. बाकी अगर आपको सबके फॉर्मूलास पता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम, जूल वी ऑल नो, ये याद होना चाहिए. m1 l2 t minus 2 डिवाइड बाय कूलम t1 a1. डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन रहा है? m1 l2 t minus 3 a minus 1. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम, V is equal to IR, resistance is equal to voltage upon current V by A. उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा? m1 l2 t minus 3 a minus 2. अब देखिए, जब ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं तो कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, उनकी हम जरा डिस्कस कर लें. यहाँ पे एक क्वांटिटी है R multiplied by C, resistance multiplied by capacitance. Resistance multiplied by capacitance. Resistance का यूनिट क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला बताइए. हमने अभी यहाँ लिखा है m1 l2 t minus 3 a minus 2. This is a resistance. What is capacitance? कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m minus 1 l minus 2 p4 e2. Getting it? I am writing down the unit dimension formula for resistance multiplied by dimension formula for capacitance. Dimension formula for resistance m1 l2 t minus 3 a minus 2. Dimension formula for capacitance we are having m minus 1 l minus 2 p4 e2. अब ध्यान दीजिए क्या बच रहा है आपके पास? m1 minus 1 m0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है. तो l2 l minus 2 l भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है. t minus 3 t4 4 minus 3 t का क्या होगा? 1. a plus 2 a minus 2 a भी क्या होगा? 0. मतलब ये सारे 0 है. सिर्फ क्या है हमारे पास? t1 ही है. t1 जो है वो किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? टाइम का. आर में जब मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस R into C, it is the dimension formula for what? It is the dimension formula for time. Next RC के बाद हम एक और क्वांटिटी
देख रहे हैं वो है L/R। L/R मतलब इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वो भी क्या है देखिए L/R M1 L2 T minus 2 A minus 2 डिवाइड बाय R M1 L2 T minus 3 A minus 2। यहाँ पे भी क्या होगा M1 M1 T minus L2 L2 A minus 2 A minus 2 T minus 3 ऊपर जाएगा minus 3 ऊपर जाएगा प्लस 3 होगा 3 minus 2 1 ये बचा T1। तो इवन L/R जो है वो भी हमें किसका डायमेंशन दे रहा है भाई, टाइम का दे रहा है। RC जो है वो तो है टाइम का डायमेंशन, इवन L/R जो है वो किसका डायमेंशन में दे रहा है भाई, वो भी हमें दे रहा है टाइम का डायमेंशन। नेक्स्ट अंडर रूट L into C। अब थोड़ा फास्ट करूंगा, सारा स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना। अंडर रूट L अपॉन C, तो पहले सब डायमेंशन का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, अंडर रूट L बाय C, L और C को मल्टीप्लाई करो, M1 M minus 1 मतलब M0 हो गया। आगे मैं L और C को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, M1 M minus 1 M0 L2 L minus 2 L0 T4 T minus 2 T2 A2 A minus 2 A0 M0 A0 A0 T2 का स्क्वायर रूट, वापस से क्या बचेगा T1, वो भी किसका डायमेंशन मिल रहा है, टाइम का डायमेंशन मिल रहा है। तो आ रही चीज आपको समझ में, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सारी क्वांटिटीज तो हमने पढ़ ली, ये सारा कुछ आप नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा हमने आगे क्या देखा है, उसके अलावा हमने आगे देखा कि ये तीन जो क्वांटिटी है मेरे पास कौन सी, RC और एक L/R, डायमेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, RC L/R और अंडर रूट L/C, इन सबका डायमेंशन T1 है, मतलब इन सबका डायमेंशन किसका है, टाइम का डायमेंशन है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन सबके डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। अगर उल्टा होता 1/RC होता या R/L होता या 1/√L/C होता तो क्या होता है डायमेंशन, T-1 बन जाता। तो डायमेंशन क्या बन जाता है T-1। तो ये किसके डायमेंशन बनते भाई, ये डायमेंशन बनते फ्रीक्वेंसी के। आ रहा है समझ में, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। RC L/R अंडर रूट LC, they all have dimension of time, that is T1, 1/RC, reciprocal of this R/L, 1/√LC, they all are reciprocal of all these quantities, so their dimension should be T-1, so they are equivalent to what, they are equivalent to dimension of frequency. Getting this very simple and very important as well. Let us just discuss now one question that is related to electrical quantity. सारे डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए कि सारे डायमेंशन फॉर्मूला किसी को भी याद नहीं होंगे, राइट, बट यूजिंग फॉर्मूला यू कैन डेवलप देम, वो चीज हमें सीखनी है, बाय हार्ट नहीं करना डायमेंशन फॉर्मूला, आपको यूजिंग फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला सीखना है। जैसे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, electrical force between two charges is given as 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, where q1 and q2 are charge, r is distance between those two charge, f is force and epsilon 0 जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है permittivity of फ्री स्पेस, ठीक है। q1 q2 दोनों चार्ज है, r is nothing else but distance between two charges, f is nothing else but force, epsilon 0 is nothing else but what, it is permittivity of free space। now what is the question ये है, find the dimensional formula of epsilon 0। क्वेश्चन समझ लीजिए,
F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Q1 Q2 are the two charges which are separated by distance R. Force of course is F. Using this formula, this is standard formula. Using this formula, find out the dimension formula for this term epsilon. How can I find out? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? एप्सिलॉन को एक तरफ लेके जाओ, इक्वेशन में एप्सिलॉन को एक तरफ लेके जाओ, क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई f r स्क्वायर। हमने एप्सिलॉन को जो एक तरफ लेके गए, इक्वेशन का सब्जेक्ट बना एप्सिलॉन को, तो ये f दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई f r स्क्वायर। अब इससे एप्सिलॉन का यूनिट क्या बनेगा बताइए? Q1 Q2 मतलब कूलम का स्क्वायर, दोनों चार्ज है, कूलम मल्टीप्लाइड बाय कूलम, सो इट इज कूलम स्क्वायर। f इज न्यूटन, f क्या है? न्यूटन है, r है डिस्टेंस, तो इट इज मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट तो मिल गया हमें। चलो हमें क्या मिला यहाँ पे? ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू आर गेटिंग दिस? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है नेक्स्ट? अब इसका डायमेंशन ढूंढना है। डायमेंशन के लिए मैंने बताया कैसे ढूंढोगे? कूलम स्क्वायर है भाई, क्या है न्यूमरेटर में? कूलम स्क्वायर। कूलम का क्या था डायमेंशन? T1 A1, लेकिन उसका क्या है भाई? उसका है स्क्वायर। न्यूटन फोर्स, ये तो याद होना चाहिए, m1 l1 t-2, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स m1 l1 t-2। मीटर स्क्वायर इज l2। चलो क्या बचेगा? यहाँ पे देखिए t2 a2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में m1 l1 और 2 l3 t-2। तो क्या बनेगा डायमेंशन? m-1 l-3 t4 a2। These are the dimension formula for epsilon 0। ये थी हमारी सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सो बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया लास्ट सेशन में और ये सेशन में भी। देयर आर मेनी मोर क्वांटिटीज, अगर हम इसे सॉल्व करने जाए देन विल रिक्वायर लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, इवन 15-20 lectures will also not be enough to just find out the dimension formula of various physical quantities। there are many physical quantities। अभी हम लोग उसका सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल पूरा पढ़ोगे, हर चैप्टर में क्वांटिटीज जैसे आती जाएगी वैसे हम उसके डायमेंशन फॉर्मूलास ढूंढते जाएंगे। हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला के एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट भाई आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा है कि हम लास्ट 2 सेशन से कॉन्स्टेंटली जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट कंसेप्ट है एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन फॉर्मूला की, क्या है यूज इस डायमेंशन फॉर्मूला का, या तो एप्लीकेशन भी मैं लिख सकता हूं। कहां यूज करेंगे अपने डायमेंशन फॉर्मूला को? जैसे सबसे पहला यूज, द फर्स्ट यूज दैट आई वांट टू डिस्कस is to establish relation between two different unit system। भारत में डायमेंशन फॉर्मूला का यूज किया इसको एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम। कैसे? जैसे कि सबसे पहली क्वांटिटी जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है डेंसिटी। चलो काफी सिंपल क्वांटिटी से ही हम स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी हम सबको पता है क्या है, मास अपॉन
वॉल्यूम, तो फिर डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, मास है तो m1, वॉल्यूम का L3 होता है, ऊपर जाए L-3 T0. This is the dimension formula of density. What is the SI unit of density? kg per, तो यहाँ लिखता हूँ kg per meter cube. What is the CGS unit of density? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब ध्यान दीजिए आप लोग, ऐसा यूनिट में मास के लिए हम यूज करते हैं केजी, वही सीजीएस यूनिट में क्या करते हैं, ग्राम. लेकिन ग्राम जो है वो क्या होता है, 10 to the power -3 kg. लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, सीजीएस में क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है ना, तो 1 मीटर इज 1/100, दैट इज 10 to the power -2 मीटर हो गया. टाइम यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, चलो सेकंड का तो कोई चेंज नहीं, इट इज 1 सेकंड इटसेल्फ. तो जो 1 kg पर मीटर क्यूब है उसे मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूं, वो मुझे यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. 1 kg per meter cube is how many gram per centimeter cube. You are getting this? 1 kg is equal to 10 power -3 gram, 10 power plus 3 gram rather, and 1 meter is 10 power plus 2 centimeter. मतलब हम यहाँ पे उल्टा रिलेशन जो है यहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेसिकली हमें मिलेगा जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो कितना केजी पर मीटर क्यूब है. ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. 1 ग्राम इज 10 to the power -3 kg. चलो ये तो है, 1 ग्राम इज 10 to the power -3 kg. 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power -2 मीटर. तो सेंटीमीटर की जगह मीटर करना है तो 10 to the power -2 करना होगा, लेकिन उसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब होगा. न्यूमरेटर में क्या होगा, 10 to the power -3 -2 3, 10 to the power -6 6 -3, 10 to the power 3 kg per meter cube. ये हो गया हमारा रिलेशन. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 10 to the power 3 kg per meter cube. हर समझ में काफी सिंपल क्वांटिटी से मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से मैंने केजी पर मीटर क्यूब बीच का रिलेशन निकाला, जिसको हम डायमेंशन फॉर्मूला के यूज से कर सकते हैं. यू आर गेटिंग दिस? काफी सिंपल है. एक और यूनिट की हम बात कर लेते हैं, एक और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं. ये सब आप पॉज वीडियो करके नोट डाउन करना ना भूलिएगा प्लीज, और हो सके तो मुझे वो आप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए आपके नोट्स. प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दोस नोट्स इन द ग्रुप. नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करेंगे, ऐसे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वांटिटी जो है हमारी सेकंड क्वांटिटी डेंसिटी हो गया. अब है फोर्स. फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस जो सबको पता है. ऐसा ही न्यूटन. सीजीएस यूनिट अगर आपको नहीं पता तो डाइन. सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन. अब रिलेशन ढूंढना है. 1 न्यूटन is equal to how many dyne. 1 न्यूटन is equal to how many dyne. डायमेंशन का यूज करो. m मास का कितना पावर है यहाँ पे, 1 न्यूटन is equal to क्या ढूंढना है, how many dyne. ठीक है, या तो फिर से हम थोड़ा सॉरी
उल्टा ही चल रहा है, हमें ढूंढना है कि रादर वन टाइम इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। मास का क्या है पावर 1, 10 टू दी पावर -3 ये m हो गया। लेंथ का भी पावर क्या है 1, 10 टू दी पावर -2 का भी पावर क्या है भाई 1, टाइम t 1 सेकेंड है 1 टू दी पावर 2 m1 l1 t -2। सारा सॉल्व में mlt कर दिया इसे। 1 टाइम इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। यहाँ पे सीजीएस यूनिट है टाइम, न्यूटन हो गया है ऐसा यूनिट, तो मुझे मास को 10 टू द पावर -3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेंथ को 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम जो है वो सेम रहेगा 10 टू द पावर -3 into 10 to the power -2 न्यूटन। क्या है आंसर 10 to the power -5 न्यूटन। ये क्या रिलेशन बना 1 टाइम इज इक्वल टू 10 to the power -5 न्यूटन। आ रही चीज समझ में 1 टाइम मतलब क्या होता है 10 to the power -5 न्यूटन। इज इट क्लियर? एक और क्वांटिटी देखते हैं, अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, तो ही आप दो यूनिट सिस्टम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक डेंसिटी करवाया, उसके बाद में फोर्स करवाया, अब तीसरी क्वांटिटी सबको ध्यान देना पड़ा। यहाँ पे तीसरी क्वांटिटी पे सबको ध्यान देना है। तीसरी क्वांटिटी जो है हमारी वो है वर्क। The third quantity that we are going to discuss is work। वर्क का यूनिट क्या है, का डायमेंशन बोलिए m1 m2 t -2। ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, भी जूल हम सबको पता है। सीजीएस यूनिट वर्क का क्या है, वो है अर्थ। अब वापस से वही सीजीएस यूनिट 1 अर्थ जो है वो कितने जूल होता है, काफी सिंपल है, ध्यान दीजिए। m क्या है 1, मास का कन्वर्जन क्या है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 का 1 पावर। लेंथ का कन्वर्जन क्या है 10 टू द पावर -2, उसके आगे पावर क्या है 2, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। टाइम क्या है t1 m1 l2 1 का स्क्वायर, 10 टू द पावर -3 -2 into 2 10 टू द पावर -4। ये क्या मिला मुझे 10 टू द पावर -7 जूल। 1 अर्थ इज 10 to the power -7 joule. So you are getting this? It's very simple. In order to establish the relation between two different unit systems, you can use dimension formula. Using dimension formula, one can easily establish relation between two different, we can say, physical quantities. अब नेक्स्ट कांसेप्ट की थोड़ा बात करेंगे। तो इसका नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है हमारा, दूसरा यूज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद मैं लिमिटेशन पे भी आऊंगा, पहले यूज देख लेते हैं। एक यूज में तो ये दूसरे यूज में लिमिटेशन मिल जाएगी हमें। To check validity या तो consistency of equations. Physics is all about relation between different physical quantities. और जब बहुत सारी physical quantities आते हैं उनके बीच में रिलेशन होते हैं, कुछ लंबे एक्सप्रेशन बनते हैं, इक्वेशन बनते हैं। कोई इक्वेशन है, मान लो कि मेरा a इज इक्वल टू b प्लस c, ऐसा कोई यूनिट इक्वेशन बन रहा है मेरा।
बी प्लस सी इंटू डी भी ले लिया। चलो मैंने अब ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट वो कैसे चेक करना है? यहाँ पे टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 4, लेकिन हम टर्म अगर इक्वेशन में बोलेंगे तो कितने टर्म है हमारे पास? 3 टर्म है। एक पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है बी, तीसरा टर्म है सी इंटू डी। ये इक्वेशन वैलिड कब होगा? इक्वेशन इज करेक्ट ओनली इफ, इक्वेशन इज करेक्ट ओनली इफ डायमेंशन ऑफ ए must be same as dimension of b must be same as dimension of c into d. Are you following? This equation is correct only if dimension of a is equal to dimension of b is equal to dimension of c into d. Then only we can say this equation is dimensionally correct. एक आध एग्जांपल लेके चेक करें। कोई भी इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, मैं कब बोलूंगा कि डायमेंशनली करेक्ट है? जब उसके सारे टर्म का इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए या डायमेंशन सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझेंगे उस चीज को। वेलोसिटी v is given as v0 plus at, जहाँ पे v क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। v0 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है मेरे लिए? ए है एक्सेलरेशन और टी क्या है? टाइम। v इक्वल्स टू v0 प्लस at। ये चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। कितना टर्म है टोटल? यहाँ पे 3 टर्म, v, v0 और at। तीनों के डायमेंशन चेक करो। पहला टर्म वेलोसिटी, फाइनल हो, इनिशियल हो। वेलोसिटी है तो m1 l1 t-1 मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है। दूसरा टर्म है v0, अगेन इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t-1। तीसरा टर्म क्या है? at, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, a इनटू t। क्या होगा डायमेंशन? एक्सेलरेशन का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m0 l1 t-2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t1 m0 l1, ये भी क्या होगा? t-1। आप देख सकते हो ये तीनों जो है v0 और at, तीनों के डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि v इक्वल्स टू v0 प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आ रहा है में v इक्वल्स टू v0 प्लस at जो है हमारा वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। अगर यहाँ पे मैंने 2 रख दिया होता v इक्वल्स टू v0 प्लस 2at, तो मुझे शायद यहाँ पे मैं तीसरा 2at का डायमेंशन ढूंढना होता। 2 अब कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यहाँ पे अगर 2 भी रखता है एक्स्ट्रा तो 2 का डायमेंशन कुछ ना होता। 2 का डायमेंशन हमें पता है कि m0 l0 t0 होता। तो 2at का भी जो डायमेंशन होता वो सेम ही होता है m0 l1 t-1। तो इवन इक्वेशन v इक्वल्स टू v0 प्लस 2at इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अब हम लिमिटेशन पे आ रहे हैं। पहली लिमिटेशन देख रहे हो आप, ये जो मैंने आपको क्या बताया, v इक्वल्स टू v0 प्लस at, वो तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ही। v इक्वल्स टू v0 प्लस 2at, वो भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि दोनों में से सही में करेक्ट इक्वेशन कौन सा है? डायमेंशनली तो दोनों को चेक किया, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम सबको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोशन, ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। मतलब
कि जब आप डायमेंशनली इक्वेशन को चेक करते हो, you don't have an idea about the constants that are coming in the equation. You are getting it? Whenever we are checking any equation dimensionally, we do not get an idea about what? The constants that are coming in the equation. Or rather I should say dimensionless constants that are coming in the equation. इसका हमें आइडिया नहीं, मतलब कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, कंपल्सरी नहीं कि करेक्ट है ही। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव इंक्लूडेड कांस्टेंट और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन दोस dimensionless constant, equation may be correct. If equation is dimensionally correct, then equation is may be correct. You have to further check it. You have to further check it for what? Dimensionless constant. यहाँ पे हमें वो चेक नहीं करना है, हमारा जो है एप्लीकेशन वो सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वही ढूंढना है। लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर इक्वेशन कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है, लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता। आनी बात समझ में? इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे बी करेक्ट। हमें नहीं पता, करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, दो चांसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द कांस्टेंट। बट इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन कंपल्सरी दैट इक्वेशन is incorrect only. You are getting my point? If equation is dimensionally correct then it may be correct, वो correct हो भी सकता है, लेकिन incorrect है तो कोई चांस ही नहीं, वो incorrect ही है, वहां से स्टोरी खत्म हो जाती है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम ये सेशन रखते हैं। तीसरी एप्लीकेशन आएगी टू डिराइव द इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, वो हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज जो भी हमने सेशन में पढ़ा है, I request you all to note down everything in your notebook. Make a good note of it.